So, Bismillahirrahmanirrahim. In the last class, we studied the second normal form or 2NF, and today, inshallah, we will start with the 3NF or the third normal form. So, the definition of third normal form is a relation is said to be in 3NF if it is in 2NF. So, the condition is first of all, we'll have to bring it into 1NF, then 2NF, and there is no transitive dependency in it. So for the 2NF, we had the condition no partial functional dependency. And in third normal form or 3NF, we have to look for the transitive dependency. There must not be any transitive dependency in our table, right? So now let's see what is the transitive dependency. If a non-key attribute, what is the non-key attribute? Any attribute that is not the primary key, okay? So if a non, that is not the primary key. If a non-key attribute determines the value of another non-key attribute, then this phenomena is known as transitive dependency. So now check 3NF के लिए क्या हमारे पास कंडीशन है, क्या रूल है कि पहले तो वो 2NF में हो और दूसरा फिर ये कि उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और उसमें कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट का वैल्यू देनी शुरू कर दे, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो अब ये देखिएगा जरा इसकी एग्जांपल। से वी हैव अ रिलेशन आर ए बी सी डी ई, so this is the relation R and these are the attributes. Now if A can tell the value, A can determine the values of B, C, D, E, then this is full functional dependency. आपने कल पढ़ा था कि अगर तमाम एट्रीब्यूट्स उसकी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। लेकिन देखिए डी जो है ये प्राइमरी की नहीं है, ये प्राइमरी की नहीं है, ए प्राइमरी की है, तो ये नॉन की है। अगर ऐसा हो, इफ डी देयर इज अ नॉन की एट्रीब्यूट determines the value of E, another non-key attribute, then this phenomena is known as transitive dependency. So A primary key. If it determines all the attributes, then it is in fact the full functional dependency. But if B tells us the value of C, or B tells us the value of D, or B tells us the value of E, then as B is non-key attribute, so it will be transitive dependency. Let's see. So if primary key A determines all the other attributes, full functional dependency. But if D, there is a non-key attribute, determines E, then this is transitive dependency. Transitive dependency, right? अच्छा ये बताओ कि इसको अभी फिलहाल बाद में लिख लोगे कि मैं बस इसको 2-3-10 मिनट में इसको खत्म हो जाएगा ये, तो बताओ इसको आपने बाद में इसको लिखना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं बेटा? यस सर, ले लिए। ले लिया, ठीक हो गया। चलो अब देखो जरा नॉर्मलाइजेशन के थर्ड नॉर्मल फॉर्म की हम एक एग्जांपल देते हैं। देखो वी हैव अ टेबल और रिलेशन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल, टीचर आईडी, टीचर नेम, डेजिग्नेशन. So these are few projects and these are the teachers. Now if I want to determine the dependencies, then I know that project ID tells me the project title, teacher ID, teacher name, designation, because for a project there is always one teacher. So अगर मैं project ID दूं तो आप मुझे title, teacher ID, name, designation दे सकते हो। और ये क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एक है और वो एक ही टीचर सुपरवाइज करता है, तो आपको इधर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं मिलेगा, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी। अब चेक कीजिए, देखिए project ID, that is the primary key, determines the project title, teacher ID, name and designation. And now here you may see project ID, project title, teacher ID, teacher name, designation. So this is full functional dependency. But along with this, if I give you teacher ID, I tell you
This is T2 or T1. Tell me the name of the teacher. You can easily tell me teacher ID can determine teacher name and designation. Teacher ID is not the primary key, and T name and designation are not the primary keys. So one non-key attribute is determining the values of other non-key attributes. समझिएगा। देखें बेटा, ये तो प्राइमरी की था। जब प्राइमरी की डिटरमिन करता है तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट बाकी नॉन की को बताए तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक हो गया। तो जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पहले जरा ये देखो कि इसमें कोई इंसर्शन एनॉमली तो नहीं है, चेक करो। अगर मैं कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहूं तो क्या मैं नया रिकॉर्ड कोई नया प्रोजेक्ट एंटर कर सकता हूं? सर उसके लिए आपको टीचर आईडी भी साथ प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर टीचर ना हो, सिर्फ प्रोजेक्ट कर दें तो नहीं होगी, नहीं हो लेकिन सकेगा इंटर अनामली। लेकिन एक बात देखो, गौर करो। देखो, टीचर आईडी तो प्राइमरी की नहीं है। तुम लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि इसीलिए मैंने तुम्हें ना ये वाला टॉपिक अलग किया था कि बाद में पढ़ाऊं। देखो बेटा, ये तो प्राइमरी की का हिस्सा ही नहीं है। ये देखो, ओके ये सर। तो खाली रह सकता है। तो इसका मतलब है क्या यस इंसर्शन सर। एनॉमली है या नहीं? नहीं सर फिर। नहीं है। अच्छा, अब देखो, अगर एक नया टीचर ऐड करना हो, T3 इमरान असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूं T3 इमरान एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर सर अनामली होगी। फिर इनॉमली होगी। इसका मतलब ये यस हुआ सर। कि इसमें इनॉमली है। इसमें कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। अगर मैं प्राइमरी की वैल्यू देता हूं तो मुझे यहाँ पर हर एक की एक एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर मेरे यस पास P1 के तो मेरे पास रिपीटिंग ग्रुप तो नहीं है, तो ये 1NF में तो है। और पार्शल के लिए पार्ट होना लाजिम है, वो भी नहीं है, ये 2NF में भी है। लेकिन देखो तो इंसर्शन इनॉमली है। क्या इसमें मॉडिफिकेशन इनॉमली है? मैं हिंट देता हूं। अगर आज डॉक्टर सर। आसिम साहब कहें कि मेरे नाम को डॉक्टर आसिम के बजाय डॉक्टर आसिम मुनीर लिखा जाए, तो कितनी दफा चेंजेस करनी पड़ेंगी? सर 3 टाइम्स नाउ। तो ये कौन सी इनॉमली है? मॉडिफिकेशन अनामली। मॉडिफिकेशन इनॉमली। तो दूसरी इनॉमली भी नजर आ गई। अब फर्ज करें कि एक प्रोजेक्ट है P4, उसको हम डिलीट करते हैं। जो ही हमने डिलीट किया तो क्या लॉस है, क्या नुकसान है? सर T1 की आईडी भी और उसका नाम भी, डेजिग्नेशन भी रिमूव हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कि सर अगर आप यहाँ से ये सिर्फ प्रोजेक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो ये तो देखो, तीनों इनॉमलीज जो हमने कल फिर पढ़ी थी, उससे पहले रोजों में भी आपको पढ़ने को दी थी। तो अब देखो, यस सर। तीनों इनॉमलीज हैं। ये 1NF में भी है। P1 की वैल्यू देता हूं तो मुझे एक ही टाइटल मिलता है, एक ही आईडी, एक ही नेम, एक ही डेजिग्नेशन, रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। अगर मैं, यस इसका सर। मतलब है 1NF में है, और क्योंकि कॉम्पोजिट की नहीं है, पार्ट्स ऑफ द की नहीं है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है। लेकिन एनॉमलीज तीनों है। तो अब हम इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए चेक करेंगे। और ट्रांजिटिव में क्या था? हमने कहा था चेक कीजिए कि अगर हम यहां से कोई ऐसी वैल्यू दें TID, तो देखो हमें टी नेम और डेजिग्नेशन मिलता है। तो TID, टी नेम, डेजिग्नेशन, ये तीनों एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनका आपस में ताल्लुक है, प्रोजेक्ट के साथ इतना नहीं है, आपस में है। तो देखो फिर क्या होगा। मैं इनकी डिपेंडेंसी दिखाता हूं, TID, टी नेम एंड डेजिग्नेशन, ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन जरा इसका देखते हैं। सोल्यूशन ये है कि हम एक टेबल बनाएंगे ट्रांजिटिव का। वी मेक वन टेबल फॉर द ट्रांजिटिव। ये देखना जरा, ये देखो, टीचर आईडी, टीचर नेम एंड डेजिग्नेशन। और एक हम बनाएंगे इसका, जो बाकी रह गए, जो जो इसमें बचे क्या थे, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट टाइटल, दो लोग। तो हम इन दोनों का बनाएंगे और इनके अंदर
टी आई डी को फॉरेन की रखेंगे। फिर सुन लें सारे, ये टेबल तो अलग हो गया, टी आई डी टी नेम डेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि टी आई डी टी नेम डेजिग्नेशन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी, इसको हमने अलग टेबल बना लिया। बाकी क्या बचा? प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट टाइटल। तो नोट करो, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट टाइटल का एक टेबल बनेगा, और इसको इसके साथ जोड़े रखने के लिए टीचर आईडी इसमें रह जाएगी एज अ फॉरेन की। तो ये देखो, टीचर आईडी टीचर नेम डेजिग्नेशन एक टेबल बना। दूसरे वाले में प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम तो रहे, लेकिन उसको इससे रिलेट करने के लिए हमने टीचर आईडी को फॉरेन की रखा। अब पता चल रहा है P1 कौन से टीचर के पास है? T2 आसिम साहब। T2 किसके पास है? T2 आसिम साहब। P4 किसके बाद है? T1 माजिद साहब। तो ये है 3NF। अब बताओ ये कितना मुश्किल है? सर समझ आ गई। सर एक तुम्हें क्वेश्चन तो था। तुम्हें तो आ रही है, बाकी तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा कल, फिर इसका मतलब फिर तमाशा हो गया मेरे साथ। हाँ जी, चलो तुम अपना सवाल कर लो बेटा, कोई और नहीं बोलेगा। सर कि हमने जैसे हमने पढ़ा था कि 2NF जब हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए 1F होना ज़रूरी है। और हम्म। अगर हम और 3NF जब करेंगे उसके लिए 2NF, तो क्या उसके लिए 1F भी होना ज़रूरी है तो या टू एन सिर्फ एफ के 2NF? लिए मेरी बात सुनो, तुमने अभी खुद ही जवाब दिया। 2NF के लिए क्या होना जरूरी था? 1F 1NF। तो देखो मेरा बेटा, जब वो 1NF होगा तभी वो तो टू टू। एन एफ होगा, तो फिर वो 3NF में जाएगा। इसलिए मैंने आपको कल यस। बहुत जोर दे के सबको कहा था कि परसों, कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यू विल हैव टू परफॉर्म एवरी स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर द 1NF, देन फॉर द 2NF, देन फॉर द 3NF। समझ में आती है? सर यस सर। हम्म। लेकिन सर जब हम 3NF कर रहे होंगे तो उसका मतलब ये है कि उसमें इंसर्शन अनोमली और ये मॉडिफिकेशन अनोमली और We डिलीशन वगैरह। all Very good. We always do the normalization to remove the anomalies. If there are यस सर। no anomalies after 2NF, then there is no need to go further. फिर आगे नहीं जाते। 2NF में अगर सब इनॉम, जिस तरह हमने जो, चलो मैं बात कर लेता हूँ, इंटरेस्ट ले रहे हो, ये टेबल्स बने थे ना। नाउ इट डज यस सर। नॉट हैव एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो इनॉमली इन इट, नो इनॉमली, सॉरी। तो जब इनॉमली ही नहीं है तो मैं इसको 2NF में छोड़ूंगा, इसमें इनॉमली नहीं है 2NF में छोड़ूंगा, इनॉमली नहीं है 2NF में छोड़ूंगा। लेकिन मैंने जान के ये वाला लिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने इसमें रख दिया था एक इशू, और वो ये था कि मेरे पास इस टेबल में इनॉमलीज थी। when I want to enter a teacher, I cannot enter a teacher until there is a project for him. And if I want to यस सर। modify the data of the teacher, it is redundant. When I want to delete a project, I also delete the teacher. So यहाँ पे issue था। तो इसमें क्योंकि anomalies थी, लिहाजा हमने इसको ठीक करने के लिए फिर transitive dependencies ढूंढी। When we got the transitive dependencies, we made one table। देखो जरा, we make a new table and take all the attributes of transitive dependency in it। एक नया टेबल बनाना है, तमाम ट्रांजिटिव वाले उसमें ले जाने हैं। where the determinant becomes the where the primary key becomes the determinant, right? या determinant becomes the primary यस key। सर। ठीक लिखा हुआ है, जो determine कर रहा है वो primary key बन जाएगा। But the original table contained the remaining columns, project ID and project name रह गया था, along with the primary key of new table as the foreign key। तो new table की थी teacher ID, वो इसमें foreign key आ गई। So due to that foreign key, the two tables are related with each other। अब जरा गौर करो, ये टेबल बना ट्रांजिटिव का, दिस इज ड्यू टू द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। these are the remaining two attributes in the table, and we bring this primary key as a foreign key in this table। so this is the solution for 3NF। इस तरीके से हम 3NF में जा सकते हैं। पहले बताओ, ये बात समझ में आती है? यस सर आ गई। Yes, sir. राइट, चलो बाकी सब लोग भी ध्यान दो, थोड़ा सा जवाब दिया करो। ये थी 3NF, और अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक हो गया। ये आपका आज का होमवर्क है। आप जरा नोट करना कि एक प्रोडक्ट कई कस्टमर खरीद सकते हैं। तो आपने इसको वन, यू विल हैव टू ब्रिंग दिस टेबल एज अ होमवर्क into 1NF, then 2NF, and check for the 3NF if it can be
प्रोसेस्ड इन 3NF, राइट। तो ये आपका अभी का काम है, अभी नोट्स बनाओ, इन सबको करो और फिर ये आपने मुझे देना है, ठीक हो गया। ओके सर। और सर लास्ट क्लास वाला होमवर्क हमारा रेडी देखते था, हैं। वो आपने वो मैं अभी सबमिट तुम नहीं वो किया। मैंने बेटा, मेरे से गलती हुई है, मुझे आज सुबह याद आया है। असल में मैं, चलो मैं एक सेकंड तुमसे बात कर लेता हूँ, बस रख दो, ठीक है।